have joined. Very quickly they will be joining. But then since it's 9 o'clock already, so we can begin in a minute. And 11 o'clock. yes, we can begin in a minute. And because today our resource person has to go for a meeting, this lecture will be shortened. He will be finishing it. Yes, he will be finishing it at 12 o'clock. We can have our discussion after that in the remaining time between 12 to 12:30. We can have our own discussion. I will try to join you for that period. So allow me to welcome Professor Nadeem Khalil from the Department of Civil Engineering, AMU, a very, very illustrious scientist and environmental conservation expert in the area of water conservation. He has been a pioneer in bringing in the Swings project at the Aligarh Muslim University, which was one of its kind in purifying water and recycling water for further use. This was a project that was funded by the EU, and he handled it so well that later on he has become a kind of a very renowned expert in terms of all the water conservation projects of rivers as well as municipal corporations. He was a part of Namami Gange also. He has been covered in a TED talk also. So because we want to project the Aligarh Muslim University as a model higher education institution for all the universities and colleges in the country. Through you, we would like to send across this message that faculty, if they are rightly motivated and if they have the know-how and if they can really do wonders, and you will get to know the Swings project. If you would have come here, we would have taken you there, and Professor Khalil's team would have given you a very good demonstration on the site. But for now, you can make the best out of his lecture and his presentation. So I request you, Professor Khalil, to kindly begin your lecture. We can already see your presentation, and I wish my participants the very best. Thank you, ma'am, and very elaborated introduction as usual, though I don't feel to deserve for that. So I'll try to like give my presentation because I can see a lot of diversification in the participants, and I'm from a hardcore engineering background, and that too from wastewater treatment technologies. So I would like to I shall do my best to remain very simple and easy, so that all the participants, irrespective whether they are from art, sciences, or social sciences, they can also understand what we are doing and what is relevant to you as well. So today I'm going to give overview of wastewater treatment. So why wastewater is treated, and how it helps in protecting the environment, our planet, and what are the different methods, approaches, with the help of which we can treat or we can manage our wastewater. So I don't know whether the medium of instruction will remain English, or you want mix of English and Hindi, or Mix, sir. Mix. Okay, that's good. So mix sir, mix. mix ठीक है, mix रखेंगे to make it simple. Or in case if you have any query or doubt or clarification, कोई पूछना हो तो you can raise your hand. There is an option in the Google Meet, and या फिर you can write to me through email. I will reply to you because I have to leave 12 o'clock sharp. So that is the constraint with me today. So though my lecture might go long, so कोशिश करूँगा कि अपनी बात पूरी से पूरी और कम उसमें कह दूँ समय में. So
first of all, I close my video now, if you permit me. Yeah. So my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's visible. So I also Sir, welcome. one Pardon? please hide the notification regarding the sharing screen. It's not What is completely the visible. problem? Video there is. Thank you, sir. This one? Okay, thank you, sir. Yeah. So let us just go to the presentation. So as you may all aware, okay, India is blessed with so many rivers, a big water resource. So that is, I think, one of the most important thing that we have, as far as this region is concerned, कि हमारे पास बहुत सी नदियां हैं, बहुत से झीलें हैं, तालाब हैं, बड़े बड़े, और ओशन भी है, सी भी है. So, and the most important amongst all of these is the Ganga Basin, so that you can see on the screen. So it is a big, very big basin, and happens to be the third or fourth largest in the world. So, and there are many tributaries that are connected with the Ganga, जो गंगा में मेन स्टेम में गिरती हैं. तो यमुना सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा बेसिन की और गंगा रिवर की, और इसकी टोटल जो लेंथ है गंगा की वो 2546 किलोमीटर्स है, जो गंगोत्री से स्टार्ट होती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज करती है. तो बहुत से स्टेट्स, बहुत से टाउन, बहुत से शहर इस गंगा के सारे चलते हैं, और इंडिया की 42% पॉपुलेशन और अबाउट 50% इकोनॉमी वो गंगा बेसिन पे डिपेंड करती है. तो ये बहुत बड़ा एक सोर्स है हमारे लिए, हमारी अपने लाइवलीहुड के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए. तो एंड आवर ड्यूटी एज इंजीनियर्स, एज साइंटिस्ट, हम लोगों का काम है कि इसको, और एज ए सिटीजन ऑल्सो, कि हम इसको साफ रखें, बिल्कुल क्लीन रखें. तो बट लास्ट 2-3 डिकेड्स गंगा की जो क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी, वो बहुत डिट्रोइट हुई है, और पानी बिल्कुल इट्स नॉट क्लीन वाटर, इट्स डर्टी वाटर, और बहुत से इसमें पॉल्यूशन है इसमें, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का पानी, फैक्ट्रीज का पानी इसमें डिस्चार्ज होता है. और आज ये हालत है कि इस पानी को इट्स नॉट इवन फिट फॉर बेथिंग. हम लोग बेथिंग भी करते हैं, स्नान लेते हैं, जो हमारे कुछ ओकेजन्स होते हैं पर्टिकुलर. तो बट वाटर इज नॉट दैट फिट, और इस पे बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से. तो अभी नमामि गंगे प्रोग्राम, जैसे मैडम ने इंट्रोडक्शन दिया, तो एक बहुत बड़ा मैसिव एक एम्बिशियस प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. तो उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं. तो कहने का मकसद ये है कि दिस होली रिवर, दिस सेक्रेड रिवर that originates from Gangotri or Rishikesh, Haridwar, and finally Allahabad होती भी, बनारस होती भी, वाराणसी होती भी, जाके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है. तो इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और इसको हमें साफ रखना है. तो इसमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. जो पानी शहरों से निकलता है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आगरा हो, चाहे कानपुर हो, इलाहाबाद हो, यमुना में गिरे या इसकी मेन स्टेम में गिरे, बट वट एवर, वी हैव टू बेसिकली डील विद द वेस्ट वाटर फर्स्ट. चाहे वो इंडस्ट्रीज का पानी हो या डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, तो दैट हैज टू बी क्लीन्ड, दैट हैज टू बी लाइक प्रॉपरली हैंडल्ड, सो दैट जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं दैट आर रिमूव्ड, and the wastewater after treatment can enter into the river. Otherwise, this river will be no more in future, और सिर्फ एक नाला बन के रह जाएगी वो. और अभी भी स्थिति जो है गंगा की तो नहीं, बट और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, जैसे काली नदी है जो मुजफ्फरनगर सहारनपुर की साइड से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और गंगा में जाके गिरती है भी. तो उसकी हालत देखें तो आज वो पूरा एक बहुत बड़ा नाला बना हुआ है. यमुना भी एक ऐसी है, हिंडन नदी है जो बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद से होती हुई यमुना में गिरती है. तो इसके
18 नाले हैं बड़े बड़े जो गंगा में गिरते हैं, यानी 144 नाले हैं जो गंगा में गिरते हैं, 18 ट्रिब्यूटरीज हैं, और हर ट्रिब्यूटरी की 6-6 7-7 अपनी नदियां हैं। तो एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है नदियों का, और इस तरह से जो आपकी ब्रांचेस हैं उसकी, और वो सब अल्टीमेटली गंगा बनती है और फिर वो चलती है आगे। तो बट इसकी हालत जो है बड़ी खराब है, और हम लोगों को इसको ठीक करना है और कोशिश करनी है कि इसको साफ रखें। तो ये जो पिक्चर है ये बेसिकली यमुना की पिक्चर है, जो हथनीकुंड बैराज आप देखें, जो यमुना पहाड़ों से आती है, यमुनोत्री से, हिमालय में, हिमालयन माउंटेन से। तो वहाँ पे जब पहला पड़ाव होता है जमीन पे आके, उसका प्लेन पे आके, तो उस जगह को कहते हैं ताजेवाला। तो ताजेवाला में एक बैराज बना हुआ है, बहुत बड़ा बैराज है। तो वहां से यमुना का जो पानी है, राइट at the beginning, it is diverted. So it is diverted into two ways. One is the Eastern Yamuna Canal and another is the Western Yamuna Canal. So Eastern Yamuna Canal goes to the UP, Uttar Pradesh, whereas Western Yamuna Canal caters to Haryana state. So that was the time when this barrage was built in 1956. Because after independence हमारे पास जो लैंड फर्टिलिटी थी, एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम थी, और यूपी, हरियाणा, पंजाब, इवन पंजाब वाज नॉट दैट फर्टाइल व्हाट यू सी टुडे। तो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, और इसीलिए ताजेवाला बैराज बनाया गया है। तो ह्यूज बैराज, आप कभी मौका लगे तो दिख जाइए इसको। वेरी वेरी ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कंक्रीट का बना हुआ है, बहुत बड़ा बैराज है ये। तो दैट वाज द नीड ऑफ द आवर कि ये कैनाल्स अगर ना होती तो आज हमारे पास उस लेवल की एग्रीकल्चर यील्ड ना होती, फर्टिलिटी ना होती। तो दैट वाज आल्सो रिक्वायर्ड। बट उसमें क्या हुआ कि इसका जो पानी डाइवर्ट हो गया, तो यमुना का जो अपना पानी था वो कुछ नहीं रह गया। अब जो पानी इसमें यमुना में जाता है वो पहले इस कैनाल्स के जरिए डिफरेंट गांवों में और कस्बों में जाके अपना इट इज सप्लाइड फॉर इरिगेशन पर्पस, फार्मर्स यूज करते हैं उसको। देन जो शहरों में पानी इस्तेमाल होता है, चाहे वो हरियाणा के शहर हों, यूपी के शहर हों, Delhi even also contributes lot waste water into Yamuna. So finally it comes here at the bottom Wazirabad barrage. This is in Delhi. तो ये पानी जो यहाँ पे मिलता है यमुना का, ये काफी डर्टी हो जाता है, because most of the cities they are discharging directly into Yamuna without any treatment. Though we have treatment plants, sewage treatment plants that are meant to treat the sewage, domestic waste water कहिए उसको या municipal waste water कहिए उसको, but they are not working efficiently। या क्या वजह है उसके पीछे, कहीं ना कहीं कोई ऑपरेशन मेंटेनेंस इश्यूज हैं। सो that is one of the reason कि इसके जो आपको दिल्ली में अपस्ट्रीम में पानी मिलता है दिल्ली के, वो वजीराबाद बैराज पे, वो भी पानी इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, but Delhi gets 70% of its water from Wazirabad barrage. So now you can imagine the situation कि ताजेवाला में fresh water है, absolutely very clean water. It is diverted into two ways, goes to UP, goes to Haryana because of the bifurcation of these two states and the need, और जो MOU हुआ था sign between the two states कि कुछ पानी आप लेंगे कुछ पानी हम लेंगे, ठीक है, वो हो गया समझौता। बट उसके उन शहरों ने जो पानी डिस्चार्ज किया, यमुनानगर हो, चाहे करनाल हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, ये सब यमुना में डिस्चार्ज हुआ। इसी तरह से यूपी ने भी डिस्चार्ज कर दिया अपना सारा गंदा पानी इसी यमुना में। तो अब जो वजीराबाद में पानी मिला आपको दिल्ली के अपस्ट्रीम में, तो गंदा पानी मिला आपको। तो गंदा पानी आपको मिला, और ये पानी आपको दिल्ली में सप्लाई करना था, बिकॉज दिल्ली का अपना कोई पानी नहीं है। ठीक है, वाटर आपका जो सोर्स है दिल्ली का मेनली वो यमुना है, क्योंकि अंडरग्राउंड पंपिंग और दिल्ली में बैन है फॉर many years. So there are treatment plants for water in Delhi that takes the water from Yamuna, from the upstream of the Wazirabad barrage, और उसके बाद वहाँ ट्रीट होके पानी दिल्ली में जाता है, सप्लाई होता है। जो आप पीते हैं दिल्ली में पानी, वो इसी यमुना का पानी होता है 70%। तो बाकी जो पानी है वो अब दूसरा सोर्स निकाला गया, वहां से उसको टैप किया जा रहा है,
और इवन गंगा का पानी लाया जा रहा है वहां से वहां पे। तो सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन गई। और दिल्ली ने पानी जब यूज कर लिया उसके बाद फिर दिल्ली ने भी डिस्चार्ज कर दिया। तो ये तो दीज आर द टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, जो म्युनिसिपल और इंडस्ट्रियल। तो 70% कंट्रीब्यूशन कम्स फ्रॉम द म्युनिसिपल सीवेज जो हाउस होल्ड से बनता है, और 30% comes from the industrial sources. So these are the different like activities that we do with river Ganga, in river Ganga. So like we dispose of solid waste like in the form of the flowers, polythings, poly bags, और जो भी मिलता है हम अपना भेज उसमें सामान डाल देते हैं उसमें गंगा में, विदाउट थिंकिंग के इसका क्या होगा अल्टीमेटली। और क्रेमेटोरियाज हैं घाट्स पे काफी बने हुए, उसका भी वेस्ट फिर फाइनली उसमें जाता है व्हेन दे रन ऑफ। और बेथिंग होती है, और एनिमल बेथिंग भी होती है, और डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज का भी होता है, उसमें हम लोग करते आए हैं। और फिर हमारा जो पॉल्यूशन होता है, जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स और गंगा की, तो वो नाले जो होते हैं वो सब डिस्चार्ज करते हैं अल्टीमेटली गंगा में और ट्रिब्यूटरीज में। So that makes this whole picture, the whole story very horrible and very dirty. And then we say कि नहीं इसको हमें ट्रीट करना है, हमें साफ रखना है। तो these two things cannot go together. तो हम डिस्चार्ज भी कर रहे हैं अपना सारा वेस्ट उसमें, और फिर हम ये कहते हैं कि हमें इसको साफ रखना है, और ये हमारे लिए होली भी है। तो बहुत इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट लाइक चैलेंज बिफोर द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो कंजर्वेशन का काम करते हैं, और एक्टिविस्ट और इंजीनियर साइंटिस्ट पॉलिसी मेकर्स के लिए कि इसको कैसे, इसको हाउ टू मेक द बैलेंस इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। सो ये सब चीजें हैं। सो यू कैन सी दिस इज the one of the nalas in Delhi. This is Najafgarh drain. You might have heard if someone from Delhi. This is also discharging waste into Yamuna. पीछे जो है ये यमुना जारी है, और ये वजीराबाद के डाउनस्ट्रीम पे आउटफॉल होता है। तो दिस इज ब्रिंगिंग वजीराबाद इज जस्ट हार्डली few kilometers from this confluence point upstream side. पीछे वजीराबाद है और यमुना आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्लो हो रही है। और ये नजफगढ़ ड्रेन आपका दिल्ली का 60% पॉल्यूशन जो गंदा पानी है वो लेके आ रहा है। तो जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि एक तो हरियाणा यूपी से पूरा यमुना को गंदा कर दिया हमने, फिर ऊपर से जो रही कहीं वो थी कसर थी वो नजफगढ़ ड्रेन ने कर दी हमारे लिए। और नजफगढ़ ड्रेन इट्स नॉट अ ड्रेन, इट इज कॉल्ड एज ड्रेन इन दिल्ली, but we were doing one project for Najafgarh drain and we interacted with the irrigation department in Delhi, और हम लोग काफी अपस्ट्रीम में गए नजफगढ़ ड्रेन के। तो ये पता चला कि दिस वाज वन टाइम रिवर, ये एक रिवर है जो राजस्थान से स्टार्ट होती है, और ये दिल्ली तक आते आते ठीक थी, और दिल्ली के बाद से फिर ये नाला में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब दिस इज वेरी सॉरो स्टेट कि हम लोगों ने क्या हालत बना दी इस नदी की जो नजफगढ़ ड्रेन नाम रख दिया। अदरवाइज इसका नाम जो पीछे है अपस्ट्रीम साइड में वो रिवर के नाम से नदी है ये। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, बट इट इज अ रिवर, इट इज अ नेचुरल लाइक वाटर बॉडी। और इसी तरह से हैदराबाद में ये मूसी रिवर है, इसकी भी यही हालत है। सो ऑलमोस्ट कहीं भी आप जाइए कंट्री में रिवर्स की जो कंडीशन है वो मोर और लेस सेम है। ये we are discharging, we are throwing solid waste, domestic waste water, industrial जो मिलता है वो सब नदी में जाए, और फिर नदी जो है वो डाउनस्ट्रीम में वाटर सोर्स भी बने, पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए बने, डोमेस्टिक वाटर के लिए बने, whatever. So ये बहुत बड़े these are some of the major challenges that we have today. And अगर ये नदियाँ खत्म हो जाएंगी तो एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाएगी, आपकी फ्लोरा फौना खत्म हो जाएगा, इको इम्बैलेंस हो जाएगा पूरा आपका, और अल्टीमेटली ये सब जो गंदा पानी है ये अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू द ओशन, इनटू द सी। ना आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, ना बारिशें होंगी, ना पूरा एक सिस्टम आपका जो कनेक्टेड है पूरा एक दूसरे से जो लिंक्ड है, दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड दैट विल गेट स्पॉइल्ड। सो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एट एनी कॉस्ट, बाय एनी मीन्स। So now it comes to the
types of pollutants. Like these are the important pollutants that are addressed and that are considered in India, at least, because we cannot go for more parameters, more pollutants, because we are still in the developing stage. तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसकी कॉस्ट को. तो ऑक्सीजन डिमांडिंग सब्सटेंसेस हैं जो BOD और COD के टर्म्स में नापे जाते हैं. पैथोजेंस हैं कॉलीफॉर्म्स जो हमारे बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं और एस्क्रीटा से के जरिए और ये पानी में पाए जाते हैं. न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनऑर्गेनिक, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये मेनली इंडस्ट्री से आते हैं. और आपके जो सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, उसमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स. सॉलिड्स हैं लाइक बहुत ही फाइन सॉलिड्स, ये सब पानी में नदियों में जाते हैं, पाए जाते हैं. तो और ये हमारे घरों से भी काफ़ी चीज़ें डिस्चार्ज होती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज से. सो वी नीड टू address all of these major pollutants to conserve our water bodies, especially the rivers. फिर इनके साथ बहुत सी डिजीजेस एसोसिएटेड हैं. तो स्किन प्रॉब्लम्स हैं और आपके डायरिया है, डिसेंट्री, जितनी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इसी पॉल्यूटेड वाटर से ही कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं. सो जब पानी खराब होगा, गंदा होगा, आप पियेंगे उसको, तो ऐसी बातें, बीमारियां तो होंगी फिर. So, and especially the pathogens, जो coliforms होते हैं, they are very harmful. So we have to take care of all of these. Just a second. So, अच्छा, then comes the standards, because हमने क्या किया ना कि अब when any government agency comes into the picture, तो वो फिर कुछ स्टडी करवाएगी, कुछ मॉनिटरिंग करेगी, कुछ अपने पैरामीटर सेट करेगी, नहीं अपने डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स बनाएगी, कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनेगा. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिसीजंस दैट गवर्नमेंट टेक्स एट अ हायर लेवल, एंड दे आर सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज, टाउन्स, वो सब है. तो हम लोगों ने काफी कैटेगराइज किया इसको, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दीज मॉनिटरिंग ऑफ द रिवर्स, नेशनल वाटर बॉडीज. और इसका जो क्राइटेरिया है, लाइक इफ BOD, biochemical oxygen demand, is more than 6 milligram per liter, so it means it is severely important. And आप जाएं, देखें यमुना का पानी, हिंडन का पानी लेके आए, अपनी लैब में टेस्ट करें, तो you will find BOD more than 6 milligram per liter. तो इसी तरह से और भी पैरामीटर्स हैं, बट मेनली हमारा जो इंडिकेटर पैरामीटर्स हैं, इंडिकेटिव पैरामीटर्स, वो BOD, COD. डिजोल्व ऑक्सीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज किसी भी वाटर बॉडी के लिए डिजोल्व ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है. अच्छी ज्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, दैट मीन्स मोर हेल्दी द वाटर इज, द रिवर इज. सो उसको मेंटेन रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी रिवर हेल्थ सिस्टम. बट डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिप्लीट्स as BOD increases, because that is directly related to each other. तो आज की तारीख में DO भी हमारे पास नहीं. जब DO नहीं होगा तो हमारा सर्वाइवल ऑफ फिश भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द ऑप्टिमम लेवल फिश रिक्वायर्स अबाउट 4 to 5 milligrams per liter DO इन द वाटर बॉडी. अगर वो नहीं है हमारे पास, तो फिर हमारी फिश डाइंग हो रही है, और ये हो भी रहा है. लाइक वी डोंट हैव फिश, जो अच्छी फिश है वो नहीं है. डॉल्फिन तो बिल्कुल खत्म हो गई. अदरवाइज देयर वाज अ टाइम व्हेन Ganges had thousands of dolphins. आज हमारे पास टोटल डॉल्फिन्स की जो स्ट्रेंथ है, पॉपुलेशन है, फ्रॉम दिस हरिद्वार टू बे ऑफ बंगाल, इट्स ओनली 29. तो अब कुछ डॉल्फिन्स आना शुरू हो गई हैं हल्की फुल्की सी बीच में, जैसे कोरोना हुआ था जब, तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी नमामि गंगे में. तो ये मतलब नेचुरल है कि जैसे आपका पानी ठीक होगा, साफ सुथरा होगा, तो और ऑटोमेटिकली जो नेचर है वो अपना स्पेस डेवलप कर लेता है. So, but we are not giving that much of time cushion to the nature कि वो अपने आप को regenerate कर ले या restore कर ले. So we are responsible for all of this mess, whatever happening with Ganges or with any river in the country or in many parts of the world. These are the standards, like 30 milligram TSS, 50 total suspended solids, 50 fecal coliforms, 1000. Then comes this MPN, 10,000 MPN per 100 ml. So, बेटा पानी कहना किसी से पानी पिलवा दें बोतल.
Thank you. So this is again the picture of Yamuna river. Like it originates from Yamunotri in upper ranges of Himalayas. Then this is the point that I discussed, that I explained to you, the Tajewala barrage. It is 60-70 kilometers from Saharanpur in UP, and it is the border of 3 states, like Haryana, यूपी एंड उत्तराखंड. यहाँ पे उत्तराखंड है आप स्ट्रीम में, और यहाँ राइट हैंड साइड पे आपका यूपी है और लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड दिस इज यमुना इन इटसेल्फ इज द बॉर्डर ऑफ 2 स्टेट्स, है ना, हरियाणा और यूपी का. तो इधर आपके सब वो बसे हुए हैं सब शहर, सोनीपत, पानीपत, फिर नीचे आप आ जाएंगे तो फिर मथुरा और आगरा आ गया, और इधर इधर इटावा, अलीगढ़ इज ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम दिस प्लेस मथुरा, बट अलीगढ़ का कोई पानी इसमें डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं होता रिवर में. सो एंड फाइनली इट मर्जेस विद रिवर गैंजेस, संगम जिसे कहते हैं प्रयागराज इलाहाबाद में, तो यहाँ पे कुंभ मेला भी होता है. So this is the, now comes to the wastewater treatment aspects. So there has been paradigm shift in addressing all of these issues and challenges. So now people are aware. Government is also giving lot of focus attention to protect all of these natural water bodies, or reuse, recycle पे बहुत focus है इस वक्त, because water is a limited resource, it's not an unlimited resource. तो और हम लोग किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, और हमारी लाइफ लाइन है वाटर, और एग्रीकल्चर पूरा डिपेंड करता है वाटर पे. तो जब पानी खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो कैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा. तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये. तो कैसे उसको पानी को साफ करा जाए, कैसे उसको हैंडल किया जाए. कुछ कह रहे हैं आप? Anyone saying something? So then comes the treatment aspect. So this is the picture that I used to show to participants in such kind of programs. So this is basically a treatment facility. It looks like a hotel, like a 5-star hotel, but it is not a hotel. It is a treatment facility, wastewater treatment plant. Not in India, somewhere else, I think in Singapore or in Southeast Asian country. वहाँ पे है ये. So the purpose of making in this way is just to make it, just to like have a very very appealing appearance in terms of the architect, and should not look like dirty thing. Because हम लोग जब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लांट्स की, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या गंदगी सी बात हो रही है कुछ. तो it's not a basically dirty thing. It is a system where raw wastewater comes and treated effluent goes out, and that treated effluent is a water resource that can be used for any good purpose. तो आप उसको अच्छा सा बना देंगे, अच्छा उसका ब्यूटिफिकेशन दे देंगे, लुक दे देंगे, तो people will feel very happy about such kind of facilities, and they would be ready to accept in their vicinity. अगर आपसे कहें कि नहीं आप पड़ोस में बना लीजिए, तो आप ठीक है बना लेंगे, बट इस तरह के लुक का हो. और अदरवाइज कुछ उसमें ऑर्डर प्रॉब्लम्स आ गई, स्मेल, ये वो, और ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, तो people will never accept it. So we have to take into account the larger interest of the people also. This is another view of the wastewater treatment plant in Hungary, in Budapest, that uses plants like जो आपके ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो उसको एरेशन टैंक में, जो पानी का जो ट्रीटमेंट टैंक होता है, उसमें डाल देते हैं इसको, एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल like oxygen supply का, because all of these facilities are biological in nature. These are biological systems जो treatment plants का जो concept है,
Or biological systems, so when I say biological system, that means we are taking the help of the microbes, bacteria, with the help of which the organic part of the wastewater is digested, is consumed by the bacteria, and your wastewater is free from the organic pollutants. So there are different steps involved in any treatment plant or treatment scheme. So one by one वो चलते हैं, and it is 24/7 facility. All of these facilities, they run 24 hours. So उसमें first is physical treatment, then maybe chemical treatment. Finally, it can go to the biological system. Or again, the last would be a disinfection, like when you kill the pathogens that are originally present in the wastewater. This is another view of the treatment facility in United States. So you can just imagine the level of the infrastructure that is created to treat the wastewater. So you can see round tanks. These are basically sedimentation tanks. This is the aeration tank, and finally again clarifiers. And these are the digesters. और फिर ये सब पूरा एक फैसिलिटी है, उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस का पूरा स्टाफ है, और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, इंटरनल रोड्स हैं. So it's a huge infrastructure setup or facility creation that requires to treat the wastewater. So I don't know the exact name where this is located, but this is from United States. I took it from net. So ये सब चीजें, like it involves lot of engineering, lot of science. ये पूरा बिल्डिंग का बनाना, ये सब डाइजेस्टर्स का बनाना, इसकी पूरी डिजाइन होता है, इंजीनियरिंग होती है, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स रहेंगे. So इसमें बहुत, it's a very challenging task before the engineers to do it. और a lot of science is involved. ना कैसे प्रोसेस जो है वो पूरा साइंस का पार्ट है. तो कैसे इसको टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो कैसे इसको रन करना है, फिर उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत रोल है इसमें, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फिर आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स, जियोटेक इंजीनियर्स. तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है ये ट्रीटमेंट प्लांट को बनाना और इसको फिर मेंटेन करके चलाना. एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसोर्सेज, लाइक इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल, लाइक बजट, और पूरा आपको गवर्नमेंट की पूरी तरफ से एक वो एड कहिए इसको या ग्रांट कहिए, whatever, but that comes from the government, and municipalities are basically responsible to make such kind of infrastructure. So broadly, wastewater treatment can be categorized in two forms. One is the aerobic method and another is the anaerobic method. So aerobic method, अगर biological systems में हम बात करें aerobic methods की, so it involves oxygen, like where oxygen is used to consume or to digest the organic material. So oxygen is supplied from external source into the water, into the tank, और वहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन है. यानी कि बैक्टीरिया जो सर्वाइव करेगा वो एरोबिक कंडीशंस में करेगा जिसमें ऑक्सीजन उसको मिले. जैसे हम लोग की जो लाइफ है, हम वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन. तो हम लोग का जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन से हो रहा है, और इसी तरह से बैक्टीरिया ऑल्सो नीड्स ऑक्सीजन इन एरोबिक मेथड्स. तो और बैक्टीरिया की एक खासियत और होती है कि इट कैन सर्वाइव इवन विदाउट ऑक्सीजन, तो वो उसको एनारोबिक कहेंगे. तो अब ये एरोबिक बैक्टीरिया हो गया और एक एनारोबिक हो गया. और बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात हो रही है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स मीन कि हम बैक्टीरिया की हेल्प ले रहे हैं टू ट्रीट आवर वेस्ट वाटर. So don't get confused that with the pathogens and bacteria what we are using here. Pathogens are originally that like sort of microorganisms that are discharged from our body in the form of excreta, and they are harmful. They are harmful. But here we are taking the help of the microbes that are good for us. External तरीके से हम उसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे. They are good for us, and they are helping to treat our wastewater. So did you get my point? Because I see a lot of confusion at this point. So
एक तो एरोबिक बैक्टीरिया हो गया जो Sir, हमारी हेल्थ में। sir, यस प्लीज। can you please repeat that anaerobic method, sir? हाँ, first we have aerobic methods where oxygen is supplied, oxygen is used, और एक है हमारा एनारोबिक मेथड जहाँ पे ऑक्सीजन को हम यूज नहीं करते हैं, और बैक्टीरिया उसमें भी सर्वाइव करता है. बैक्टीरिया विल सर्वाइव इवन without oxygen, and it will do its job. The job is to consume, to digest, to degrade, to decompose the organic material, waste material, which is present in the wastewater in the dissolved form. This is very important point to be noted here. जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल डिजोल्व फॉर्म में पड़ा हुआ है पानी के अंदर, गंदा पानी जिसे कहते हैं हम, उसको उसको सेपरेट करना है, एंड दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट even with the help of any filter. So bacteria, the role of microbes in this particular stage is very, very important. Very important. Otherwise, it is not possible to separate the organic waste from the water. Suppose if I ask you ke एक glass of water में if I just add 1 or 2 drops of ink, जो ink आती ना आपकी कलम में, पेन में यूज करते हैं हम लोग, अगर हम ink डाल दें तो what will happen? Ink will immediately get dissolved in the water. And I ask you कि आप इसको ink को सेपरेट कर दीजिए. अब you cannot do it. It is not in the dissolved form. अब वो डिजोल्व हो गया तो उसको फिल्टर नहीं कर सकते आप. थोड़ा बहुत हो जाएगा 30-40%, but not 100%. So what is target in our case at this stage कि जो ऑर्गेनिक मैटर बीओडी, हमारा जो बीओडी की फॉर्म में है, डिजोल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर जो वेस्ट वाटर में पड़ा हुआ है, उसको हमें उससे हटाना है. उसको हटाने के लिए हमारे पास we have 2 approaches. One is aerobic approach, another is the anaerobic approach. These are the 2 broad things. Did you get my point? समझ में आया कुछ? हाँ sir. Excuse me sir, may I have a question? Sure. सर अभी आपने बताया एरोबिक मेथड्स एंड एनारोबिक मेथड्स, तो दोनों में एक डिफरेंस थियोरेटिकली दिख रहा है कि ऑक्सीजन एक में सप्लाइड है और एक में नहीं, तो हम इनको कंट्रोल्ड कह सकते हैं कि जो एनारोबिक है वो कंट्रोल्ड वे में है? ये कंट्रोल दोनों है मैम. तो सर प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए इसको. देखिए प्रैक्टिकली ये हुआ कि हमारे पास सपोज 10 लीटर्स वेस्ट वाटर है. जस्ट इमेजिन, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको. 10 लीटर्स वॉल्यूम का हमारे पास वेस्ट वाटर है और उसमें बीओडी पड़ा हुआ है. बीओडी उस वेस्ट वाटर के अंदर ही होगा ना, गंदा जो पानी होगा उसके गंदगी को जो नापने का जो पैरामीटर है वो बीओडी है, ऑर्गेनिक पार्ट को. इससे उसके अलावा बहुत से और भी पॉल्यूटेंट्स होंगे उसमें, सॉलिड्स भी होंगे, नाइट्रोजन भी होगा और पैथोजेंस भी होंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी होंगे. बट हम लोग इस समय जो बात कर रहे हैं वो केवल ऑर्गेनिक वेस्ट की बात कर रहे हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट को जो नापने का जो तरीका है लेबोरेटरी में वो बीओडी है, बीओडी टेस्ट. तो अगर हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल 200 है वो नंबर बीओडी का, और हमें स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो सीपीसीबी ने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं वो 30 लाना है और 10 लीटर पानी है हमारे पास, तो हमारे पास 2 अप्रोच है उसको साफ करने की. उसमें से उस 200 को 30 पे लाना है हमें. तो आपको मतलब ये मान के चलिए कि 170 को हटाना है उसमें से. अब 170 जो डिजोल्व फॉर्म में ऑर्गेनिक वेस्ट है बीओडी के टर्म्स में, उसको हटाने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, वो आपके पास 2 हैं. एक तो है कि आप उसको एरोबिक से कर लें, एक आपके पास है एनारोबिक से कर लें. एरोबिक से क्या करेंगे कि आप उसमें एयर डिफ्यूज कर दीजिए, एक्सटर्नल सोर्स से एयर को डिफ्यूज कर दीजिए. आप उसमें ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए उसकी, उस पानी की, जो आपके पास पानी है 10 लीटर का. ठीक है. एक है कि उसके ऊपर, दूसरी अप्रोच है कि उसके ऊपर पानी, उस पर कोई ऑक्सीजन सप्लाई मत करिए,
आप उस पे टाइट कर दीजिए उसको, उसके ऊपर एक कैपिंग कर दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए उस जो भी आपका कंटेनर है या टैंक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में, बट मतलब वो जो जो भी चीजें ये होती हैं वो बड़े स्केल पे होती हैं बहुत। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, सो डोंट टेक इट कि वो 10 लीटर ही करना है मेरे साथ, ठीक है। तो एक हमने करा कि हमने ऑक्सीजन इंड्यूस कर दी उसमें एक्सटर्नल सोर्स से, कंप्रेसर के जरिए या डिफ्यूजर के जरिए। एक हमने कर दिया कि उसके जो हमारा ओपन टू स्काई वाला पोर्शन था उसके ऊपर हमने टाइट लीड कर दी, लीड लगा दी, एक ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर। अब 2 अप्रोच हो गई, नहीं हो गई आपकी पास। ऑक्सीजन आप सप्लाई करेंगे और बैक्टीरिया सीडिंग करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, और पानी आपका वो जो बैक्टीरिया होगा वो सरवाइव करेगा, बहुत उसका जो रिप्रोडक्शन रेट होगा बहुत फास्ट होगा, एंड इट विल स्टार्ट, बिकॉज बैक्टीरिया का वो फूड है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है बीओडी के टर्म्स में वो बैक्टीरिया का फूड है, खाना है उसका वो डिजोल्व फॉर्म में। दैट इज दी ब्यूटी, यही उसका की पॉइंट है। तो आपने बैक्टीरिया को इतना अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया कि उसको आपने हवा दे दी ऑक्सीजन की फॉर्म में, आपने उसको खाना दे दिया ऑर्गेनिक वेस्ट की फॉर्म में, उसको और क्या चाहिए। तो बड़े लेविश तरीके से उसको यूज करेगा, खाएगा, और वो खाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा। द मोमेंट बैक्टीरिया ईट्स अप, dissolve oxygen, dissolve of organic matter is removed. दूसरी अप्रोच क्या है कि हमने उसको ढक्कन उस पर टाइट कर दिया, एनारोबिक कर दिया, हम ऑक्सीजन जाएगी ही नहीं अंदर, और माइक्रोब्स कोड में डाल रखा है, तो उसमें पहले से सीडिंग कर रखी थी या वट एवर। सीवेज के केस में तो ऑलरेडी माइक्रोब्स होते हैं, है ना। तो वो जो बैक्टीरिया है, जो सेकेंड वाली अप्रोच है आपकी एनारोबिक वाली, इसमें आपने ऑक्सीजन इंड्यूस नहीं करी, आपने ऑक्सीजन को फोर्स कर दिया कि आप उसको ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम करिए विदाउट एनी ऑक्सीजन। तो वो इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी है बैक्टीरिया की कि वो इसको भी अडॉप्ट कर लेगा, इस एनवायरनमेंट को भी, और वो पूरा बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशंस में विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करेगा फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। तो उनका रिप्रोडक्शन भी होगा और इनमें डिकेइंग भी होगी, ये मरते भी हैं और पैदा भी बहुत होते हैं। तो ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो स्टेबलाइजेशन टेक्स टाइम, लाइक जो स्टार्टअप होता है दैट टेक्स टाइम, लाइक 2 months 3 months, बट वंस वो स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर वो अपने आप अडॉप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट को, और फिर वो कंटिन्यूस प्रोसेस बन जाता है वो। अब समझ में आया बात कुछ? सर फिर तो एनारोबिक ज्यादा बेस्ट हुआ। हाँ, एनारोबिक आप, यस यू आर राइट नाउ। यस एनारोबिक अच्छा इसलिए हुआ कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करना एक अपने आप में बहुत बड़ा एक इशू है, एंड इट इज वेरी कॉस्ट इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव। आप ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप मोटर्स और आप जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा उसका आपका, एंड इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट्स नॉट दैट कि आपने बहुत छोटी सी हवा लेके उसमें ऑक्सीजन इंड्यूस कर दी, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ ह्यूज, यू आर टॉकिंग ऑफ ह्यूज लाइक फ्लो, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज ह्यूज। से फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ का अगर पानी है तो अलीगढ़ की 10 lakhs की पॉपुलेशन का the amount of the wastewater from Aligarh only is about 100 MLD, 100 million liters per day. इतना huge amount में अगर ऑक्सीजन सप्लाई करने बैठे आप तो you need lot of energy. So we have data available. You need lot of energy. So we have data available. Yes, I'm not able to hear. आपकी आवाज में डिस्टर्ब हो रही है शशिकांत। क्या बोलिए क्या कह रहे हैं आप? आपकी yes left. I didn't hear you. क्या आपने क्या कहा? But something about energy, I think, I guess. So अगर आपको 1 MLD यानी कि 1 million liters पर डे, जो 10,000 पॉपुलेशन आप अज्यूम करिए 10,000 पॉपुलेशन है, उसका पानी डिस्चार्ज हो रहा है पर डे के बेसिस पे, तो दैट मेक्स 1 MLD। किसी भी एक
कम्युनिटी की, सोसाइटी की 10,000 पॉपुलेशन है, तो वो इंडिया वाले जो डेटा है, इंडिया का जो हमारे यहाँ, बिकॉज बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है इन सब चीज़ें, तो वो 1 ml कंट्रीब्यूट करता है, 1 मिलियन लीटर्स पर डे, ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन। तो उसको एरोबिक मेथड से अगर आप चलाना चाहते हैं, उसको ट्रीट करना चाहते हैं, तो आपको 300 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। तो अगर 300 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है आपकी, और आपका जो रेट है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कमर्शियल रेट है, वो अबाउट 12 रुपीज़ है, तो दैट मीन्स 3,600 रुपीज़ पर डे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रनिंग बिल है आपका ये। और नाउ यू आर टॉकिंग ऑफ अलीगढ़ सिटी वेयर यू हैव 100 mld, तो इसका मतलब वो 3,60,000 रुपीज़ पर डे you are investing into energy only. It's a huge amount. और फिर उसका वियर टीयर, उसकी मशीनरी का, उसके मैकेनिकल सिस्टम का, वो आपको अलग रखना पड़ेगा, रिकरिंग कॉस्ट, नॉन रिकरिंग कॉस्ट, दैट मेक्स ह्यूज बजट, ऑपरेशन मेंटेनेंस। सो जैसे मैम ने कहा कि दैट मीन्स कि एनारोबिक हमारे लिए अच्छा है, यस अनडाउटली एनारोबिक बहुत अच्छा है। एनारोबिक में एक एडवांटेज है कि आपने उसको कवर कर दिया, क्लोज कर दिया पूरे टैंक को, बैक्टीरिया को फोर्स कर दिया कि आप एनारोबिक से अपने आप को, हमारे पानी को साफ करिए। मगर ये साफ कर देगा, पर इसके साथ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि इसकी एफिशिएंसी इज नॉट एट पार विद द एरोबिक मेथड, दैट इज द लिमिटेशन। लाइक एनारोबिक मेथड की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 70-75%, whereas aerobic methods they can perform to give 95, 96, even 97% removal. So this is the disadvantage of anaerobic. Vis-a-vis, anaerobic methods produces biogas. आपकी जो टैंक्स होते हैं, क्लोज टैंक्स, they produce biogas, and biogas contain methane, and methane is energy rich gas. You can use that methane for some good purpose, like you can generate electricity out of methane. You can use as a domestic fuel, or even as in automobile. In many countries, this methane is used as a fuel in automobile. So, हाँ बताइए। So ये आपकी एनारोबिक की एडवांटेज हो गई कि मीथेन आपको मिलेगी डायरेक्टली और आप उसको यूज कर लीजिए। तो एरोबिक इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंडिया में जो स्टार्टिंग हुई थी गंगा एक्शन प्लान में इन 90s, अर्ली 90s टिल 2010, उस पर एनारोबिक पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ। बट अब जैसे हमारे यहाँ एनर्जी की जो पावर का जो स्टेटस है, दैट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड अ लॉट लास्ट 1 डिकेड्स में। तो अब हम लोग काफ़ी स्विच कर गए हैं एरोबिक मेथड्स के ऊपर। So this all depends upon the availability of the resources. जैसे पावर आपके पास अब अच्छी हो गई आपके यहाँ, तो आप एरोबिक में चले गए। तो अब जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे हैं, वो 70% of them are based on aerobic methods. But from 90s, early 90s till 2010, जो ट्रेंड था वो एनारोबिक का था कंट्री के अंदर। Majority of them were installed on anaerobic concept. बात समझ में आई कुछ? यस सर। ठीक है। तो Yes, sir. अब थोड़ा सा और एक स्टेप और ऊपर आते हैं कि ये तो हो गए ब्रॉडली मेथड्स हो गए। अब डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट इंजीनियर्स, सब ने अपनी अपनी रिसर्च करी, अपनी अपनी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने अपने प्रोसेस को नाम दे दिए। एक ने कहा एक्टिव रिसर्च प्रोसेस, एक ने कहा टिकटिंग फिल्टर। अब इसकी बहुत बड़ी स्टोरी है, मतलब लाइक व्हाई दिस इज एक्टिव रिसर्च प्रोसेस, व्हाई दिस इज, these are the different technologies. So
ASP अगर आपने कोई सुना हो कभी, ट्रिकिंग फिल्टर्स, एक्सटेंडेशन सिस्टम, सीक्वेंस। अभी जो कंट्री में ट्रेंड है वो ज़्यादातर वो सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर्स का है, और मूविंग बेड बायोरिएक्टर्स का भी काफ़ी ट्रेंड है कंट्री में इस वक्त। और these are the different technologies, but method is aerobic, all aerobic। सब जितने भी सब में ऑक्सीजन चाहिए, भरपूर ऑक्सीजन चाहिए, एयर। और इसी तरह से फिर एनारोबिक में आप जाएं तो एनारोबिक में यूएसबी प्रोसेस इंडिया में बहुत लगा। वी आर पायनियर लाइक इन इम्प्लीमेंटिंग यूएसबी प्रोसेस इन इंडिया, लाइक इट स्टैंड फॉर अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट। तो बहुत इंडिया में मतलब लार्जेस्ट यूएसबी प्लांट्स हैं वर्ल्ड के। वी आर द मार्केट लीडर्स इन यूएसबी लाइक इन द वर्ल्ड। एनारोबिक पॉन्ड्स भी बहुत बने, एनारोबिक फिल्टर्स भी बहुत बने। तो ये सब काम हुआ है यहाँ पे कंट्री में हमारे यहाँ। तो ये दीज आर द मतलब ये सिंपल स्केच है जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए कि पानी आता है इधर से, प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, फिजिकल ट्रीटमेंट हुआ, ये फिर ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट डिसइंफेक्शन हो गया, पानी बाहर निकल गया, ठीक है, ये किसी नाले नदी में गिर गया। जो सिलज बना, इसके अंदर बाई प्रोडक्ट्स बने पानी को सफाई करने में, वो डाइजेशन में चला गया डाइजेस्टर के जरिए, फिर वो डीवाटरिंग हो गई, फिर वो मैन्योर के फॉर्म में, खाद के रूप में उसको आपने एग्रीकल्चर फार्मर्स को इरिगेशन के लिए, सॉरी नॉट फॉर इरिगेशन, एज ए फर्टिलाइजर आपने दे दिया, ठीक है। तो ये पूरा एक रेवेन्यू मॉडल भी बन जाता है बहुत अच्छा। और फॉरेन कंट्रीज में तो ये ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं, ये फैक्ट्रीज होती हैं, लाइक जो भी आपके जैसे कोई भी रेवेन्यू अर्निंग फैक्ट्री होती है हमारे यहाँ, जैसे पेप्सी कोको की हो या किसी भी कपड़ा मिल हो, इसी तरह से वहाँ पे इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स। दे अर्न लॉट ऑफ रेवेन्यू आउट ऑफ दीज फैसिलिटीज। इट इज नॉट लाइक कि म्यूनिसिपैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो म्यूनिसिपैलिटी उसको चलाए ना चलाए, इट्स नॉट लाइक दैट। तो most of the treatment facilities are operated by private owners and they take the sewage of city like Aligarh or Delhi कि आप हमें सीवेज दीजिए, हम आपको साफ पानी देंगे। और उससे फिर वो लोग क्या करते हैं कि अपने बायो प्रोडक्ट्स निकाल के बेचते हैं मार्केट में और उससे अर्न करते हैं। तो इट इज अ वेरी गुड बिजनेस लाइक इन वेस्टर्न कंट्रीज। टाइम हो गया, आई हैव ओनली 7 minutes left, but make it 10 minutes more. अभी लेक्चर मेरा काफी लंबा है तो just skip some of the slides. This is the conventional active research process जो हमारे यहाँ यूज होता है। तो I am not going to explain you, but I'll share my presentation with the BAM and she can, और उनके ऑफिस वाले को आपको दे सकते हैं। तो ये सब हाई रेट सिस्टम्स है ना, एनर्जी इंटेंसिव है। आप देखिए कि इसमें पंपिंग है और आपकी एरेशन हो रहा है। So all of these systems require a lot of like energy, mechanical systems, lot of noise is there, और though they are very compacted in nature, ठीक है, उनका जो साइज है वो कम होता है, छोटा होता है, फुटप्रिंट्स कम होते हैं, बट पूरा एक वर्कशॉप होता है उनकी मैकेनिकल सिस्टम्स को डील करने का। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत है, और नाउडेज देयर इज ए ट्रेंड फॉर ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन में चले गए लोग, अब प्लांट जो है पूरे ऑटोमेशन में चले गए, तो ऑटोमेटिकली अपने मोड में वो रन कर रहे हैं। बट उसमें खराबियां भी आती हैं, कंप्यूटराइज हो गया चीज़ें, आए दिन इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दीज आर ऑल वेरी एडवांस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट सिस्टम्स जो कंट्री में लगाए जा रहे हैं। और दिस इज पिक्चर ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स इन गोवा, पंजिम। So this is sewage, and here you can see the treated water. I'll skip these slides. This is more of process. So I would explain you अगर आपका किसी का इंटरेस्ट होता है इसमें। So nowadays एक नई टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई है, मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। This gives very fine quality of water for treatment. So membranes are used, like ना RO, जैसे हमारे घर में पानी को साफ करते हैं हम लोग RO से अपने, इस तरह से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, बट वेरी एक्सपेंसिव। उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है, और जो ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट है वही बहुत ज़्यादा है इसकी। तो ये सब ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो
थाईलैंड में, हांगकांग में लगे हुए हैं, और you can see this is in Turkey somewhere, this is in Delhi, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगा था ये प्लांट। ये मेम्ब्रेन के ऊपर है ये प्लांट। दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट which was built under Commonwealth Games by Delhi Jal Board. So this is very big plant, very compacted in nature, or very good effluent quality, because technology is membrane. तो ब्रिटिश वो था एक प्रोटोकॉल, उसको अकॉर्डिंगली इसको लगाना पड़ा था मेम्ब्रेन में। Sorry, Professor Nadeem Khalil, for the interruption. This is Abdul Rahim, Director, UGC HRDC. I know Dr. Faiza has already introduced you, but it is my pleasant duty to welcome you, to thank you on behalf of all the fellow teachers enrolled in this FIP. And you know very well how distinguished Professor Khalil is. To environment, to so many international projects, including Ganga Purification Program, and the invaluable work he has been doing, not just for us, but for generations to come. You see, this waste is going to be insurmountable problem for our future generations. So what Professor Khalil is doing today, the future of humanity lies in that. तो बताएं आप डॉक्टर हेरन पटेल साहब, कैसा चल रहा है? डॉक्टर हेरन पटेल। Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. It is, yes, sir. It is going really well. Actually, in कुछ the beginning of, नए आइडियाज मिले आपको जी? yes, sir. We are actually enjoying this session and good. आप बताएं डॉक्टर सुशील कुमार जी। यस सर जी बताएं। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, नए आइडियाज बहुत से मिल रहे हैं सर जी। और देखिए आप लोगों को मैं बताऊं, यस सर, ऑफलाइन वो नहीं होता प्रोग्राम, और आजकल वो कांटेक्ट हमारा नहीं हो रहा। यहाँ हमारे अलीगढ़ी की एक लेडी है, शी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए बिलियनियर इन द पॉश एरिया, मैरिज रोड, अलीगढ़ में। हर नेम इज प्रीति महेश्वरी, यंग लेडी। उसने अपनी लाइफ का मिशन बना रखा है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा और उसका डिस्पोजल। जी देखिए, बिलियनियर घर की बहू क्या काम कर रही है, 24 घंटे। हमारे अलीगढ़ के नगर निगम ने उसको वो बना दिया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। हर प्रोग्राम में हम उसको बुलाते हैं, एंड शी इज वेरी कर्टियस, वेरी फ्रेंडली, और फॉरन प्रैक्टिकल हेल्प। आपको पता है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, इसमें अबाउट 20,000 से ज्यादा यंग बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स में रहते हैं। जब हॉस्टल में रहेंगे तो कूड़ा भी होगा, फिर उनका खाना भी पकता है, उसका भी वेस्ट होता है। तो उन सबको गाइड करना, उन सबको ये वेस्ट डिस्पोजल के ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स बताना, he has been doing it with a sense of mission. Our hats are off to him, and so is our own very distinguished professor Nadeem Khalil, and all of you take him as a role model. बताएं आप डॉक्टर शमा बी जी, सही कह रहा हूँ? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, सही कह रहा हूँ मैं ये जी? यस सर, बिल्कुल सही और राइट सर, वेरी ट्रू सर। जो लोग आज काम कर रहे हैं, कल के लिए आपके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनको तो हमें दिल से सलाम करना चाहिए। अपने लिए तो आदमी सब कर लेता है, जानवर भी कर लेता है जी, लेकिन कल ब्राइट हो,
कल सेफ हो, कल सिक्योर हो, कल देश बेहतर हो, इसके लिए जो काम कर रहा है। और हमारे डॉक्टर साहब का कमाल है, प्रोफेसर खलील साहब का, यूरोप से, अमेरिका से प्रोजेक्ट लाते हैं, फंडिंग लाते हैं, और भला इसका हो रहा है देश का। यहाँ जगह जगह वेस्ट का डिस्पोजल का ये सिस्टम बना है। सो प्रोफेसर खलील, thank you very much, and once again on behalf of everyone I thank you, and I look forward to your continued. Okay, bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Just a minute, just a Thank you, minute. sir. Thank you, sir, Thank you, for sir. your nice words. Okay, bye. Thank Bye. you, sir. Thank you. Bye. Great. Great. Professor Khalil. Hello. Please जाओ. Yes. Yeah. Yes, sir. Namaskar. सर अब आप कंटिन्यू करना चाहेंगे क्या? नहीं सर ने खुदा हाफिज़ थैंक यू नहीं, आपको तो बीच में उन्होंने वेलकम किया था बस। नहीं आप सर बस 5 मिनट आप करके और खत्म कर दीजिए आप। जी जी 5 मिनट करके आप वो कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके थैंक यू। Participants, Naneem Khalil sir is coming because he just need to go for some work, so he'll leave you before the time. So please, he's just coming for 10 minutes. So please please be here. Sandeep Agarwal ji, please mute your mic. Please. Sir, please mute your mic. हेलो 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 Sandeep, please mute your mic. Sir, please. Nadeem sir is coming. Just mute your mic. हेलो मैडम मैडम हेलो जी सर। हेलो जी सर जा सकता हूँ अब? नहीं सर अभी भी चल रहे हैं। आप आइए सर, चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर। आ रहे हैं सर अभी। थोड़ा सा वेट। ठीक है ठीक है ठीक है। पाँच
Participants, I'm really sorry for this. Because Professor Singh Ali is not able to get connected. So he was connected. Okay, sir. Now we will do. We'll take. Sir, your voice is cutting. We cannot hear you properly. Not audible clearly. Not audible, sir. Cannot hear you, sir. The day today. So not able to catch. You're still not audible, sir. We'll meet tomorrow. So can you please write this in the chat box because you are not audible to us. सर ये कह रहे हैं कि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिला जाएगा और कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं इसलिए आज क्लास नहीं होगा। अच्छा, Okay. तो हम लोग Today's class over. क्लास ही जो we can leave now. थैंक यू सर। Now, should you wait till 12:30 p.m.? Should you wait till 12:30? नो नो नो